Okay, friends. So once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe. Your family members, your relative, your parents are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, on the last lecture, I had discussed a very important topic of this chapter. I had discussed the series and parallel combinations of resistors. Series and parallel combination of the battery of the cells. So friends, anybody knows what was the conclusion we obtained? किसी को पता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? फ्रेंड्स, एम आई ऑडिबल टू यू? क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? फ्रेंड्स, एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, sir. ओके. Okay, what is happening here? Okay. Some problem is happening here. Okay. Okay, friends, let's talk. Can you see the whiteboard on your mobile? Yes, sir. Okay. Series combination of cells. So we had proved that if the cells are connected in series and in helping manner, then if you want to find the effective EMF, then you have to take the addition if all the cells are connected in helping manner. And the formula comes out to be a summation of all the EMF. And in that case, the internal resistance can be written as a R1 plus R2 up to Rn. That is a summation of Ri. And we also had proved if n number of resistance, if n number of EMF having a similar EMF, if n identical cells are connected in series in the helping manner, for n identical cells are connected in a series in a constructive manner, then the effective EMF was, anybody tell me what was the answer? कोई बताएगा? E1 plus E2 plus E3 up to EN. हाँ, वो सब आइडेंटिकल. अभी मैंने ऐसा किया कि दे आर आइडेंटिकल. So what should Any. Yeah, any will be the answer. चलो मुझे सोच के बताओ कि n number of cells are connected in series in the constructive manner. तो अभी जो net EMF होगा वो n into E होगा.
बट अगर मैं कोई एक सेल का पोलैरिटी रिवर्स कर रहा हूँ, अगर कोई एक सेल का पोलैरिटी अगर मैं उल्टा कर देता हूँ, तो कोई मुझे बताएगा व्हाट शुड बी द न्यू ईएमएफ, इफेक्टिव ईएमएफ? n-2e. Yeah, n-2e is the right answer because n-2e is the right answer because अगर आपको एक उसको उल्टा करोगे ना तो दो का इफेक्ट कैंसिल होगा. अगर एक उल्टा करोगे तो वो जो उल्टा हुआ वो तो गए जाएगा ही, और उससे उसका वो अपोजिट होने के द्वारा एक दूसरा भी वो कैंसिल करेगा. तो नेट ईएमएफ will be n-2e is the right answer. Good. So that was the all about the series combination. अब पैरेलल कॉम्बिनेशन हम के फॉर्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट है. पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला किसी को पता है? इफ ई इफेक्टिव, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर द ई इफेक्टिव एंड आर इफेक्टिव फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशंस? 1/e effective equals to 1/e1 plus 1. Wrong answer, wrong. Anybody knows the formula of effective EMF in the case of parallel combination? Same. वो तो आइडेंटिकल के लिए था. सर वोल्टेज सेम हो रहा है इसलिए ईएमएफ भी सेम रहेगा. अरे आइडेंटिकल हो तो ई का ही रहेगा. फ्रेंड्स, आपने ये मेरे स्क्रीनशॉट मैंने भेजे तो उसका आपने पढ़ा नहीं उसको? So in this kind of configuration, we had proved the E effective is equals to E1 R2 plus R1 upon R1 plus R2. So that was the formula for the cells. Two cells are connected in the helping manner. The helping manner meaning the meaning of the helping manner here is that positive terminals are connected together. That is considered to be helping manner. अगर कोई एक सेल का पोलैरिटी उल्टा होता तो यहाँ पे पॉजिटिव के बदले -E2 आता. एंड आर इफेक्टिव तो आपको पता ही है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है? R1 R2 upon R1 plus R2 होता है. In the parallel combination, the effective resistance can be given by R1 R2 upon R1 plus R2. अब इसके द्वारा हमने ये प्रूव कर दिया था कि इसके द्वारा E इफेक्टिव अपॉन R इफेक्टिव अगर लिखते हैं तो इट इज कम E1 R1 प्लस E2 R2. तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर n नंबर ऑफ सेल्स है तो अगर n नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन द सिमिलर मैनर तो ये जो फॉर्मूला है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर n सेल्स इन पैरेलल. तो ये जो फॉर्मूला है E इफेक्टिव अपॉन R इफेक्टिव का, उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं. इट इज कम्स आउट टू बी लाइक दिस. तो दिस was we had discussed, and for n identical cell, for n identical cells, the effective EMF will be remains the E as it is. सीरीज में n टाइम्स ही होता है, पैरेलल में वो वही का वही E ही रहता है. तो ये सारा चीज हमने डिस्कस किया था ऑन द लास्ट लेक्चर. तो फ्रेंड्स, आज हम आगे बढ़ने वाले हैं. सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स हमने डिस्कस किया. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल. तो अभी हमारा जो टारगेट है वो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल है. तो क्वेश्चन ऐसा है कि डिराइव द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक करंट in the case of a mixed combination of the cell.
Question is, derive formula for current in external resistance for a mixed combination of a cells. चलो कोई मुझे बताएगा कि अगर एक ही सेल है, अगर सिंगल सेल है, उसका ईएमएफ आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, एक ही सेल है, उसका ईएमएफ आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, तो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? चलो ये प्रूव किया हुआ है, एक ही सेल है तो व्हाट शुड बी द इक्वेशन ऑफ द करंट? E plus small r into capital R. क्या बोल रहे हो? What is the equation of current? अच्छा, you can think by this by Ohm's law as well. Current is equals to voltage upon resistance. तो हमने ये प्रूव किया था फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में ही प्रूव किया था कि इन दिस काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, E अपॉन R प्लस R होता है। वैसे ये इक्वेशन कहाँ से आया था पता है आपको? वो टर्मिनल वोल्टेज E माइनस IR होता है, एंड टर्मिनल वोल्टेज कैन ऑल्सो बी रिटन फॉर द एक्सटर्नल सर्किटरी, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज IR। तो E माइनस IR भी कह सकते हो, V इज इक्वल टू IR भी कह सकते हो, तो उसको कंपेयर कर दो, तो उसके ऊपर से हमको ये फॉर्मूला मिला था, I इज इक्वल टू E अपॉन, मतलब एक ही सेल है, अगर एक ही सेल है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में आपको करंट फाइंड करना है, तो उसका ईएमएफ ले लो अपॉन एक्सटर्नल प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। इट इज लाइक अ ओम्स लॉ, V अपॉन नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस, इट इज लाइक दैट। बट यहाँ पे एक सेल की बात नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे सेल है और उसको मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मतलब सीरीज एंड पैरेलल मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना है। देयर आर नंबर ऑफ सेल्स आर देयर, उसको मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना है। अज्यूम दैट कि कोई एक ब्रांच जो है उसके अंदर n नंबर ऑफ सेल्स E1 E2 up to En, this n number of cells are connected in series. This n number of cells are connected in series. और ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस, E1 वापस से E2 अप टू En, मतलब ऐसे बहुत सारे 1 2 अप टू m number of branches. M number of branches are connected in series, in parallel. सो फ्रेंड्स, बहुत सारे सेल यहाँ पे कनेक्ट हुए, एक ब्रांच में n सेल्स कनेक्ट किया हुआ है सीरीज में, और ऐसे m number of branches are connected in parallel. So can I say this is the mixed combination of the cells? Yes or no? Yes sir. तो एक रो में बहुत सारे सेल्स है, n number of cells है, और ऐसे m number of branches पैरेलल में है, और ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है उसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। तो इफ बाय एनी हाउ, इफ आई एम able to find the effective EMF
of this configuration and effective internal resistance of this configuration, I can convert this circuit into this way. अगर मैं ये कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव ईएमएफ एंड इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस अगर फाइंड कर देता हूं, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको मैं इस हिसाब से कन्वर्ट कर सकता हूं. मतलब एक ही सेल जिसका ईएमएफ ई इफेक्टिव एंड उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर इफेक्टिव है, ऐसे एक ही सेल में मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूं. तो मुझे तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देन व्हाट शुड बी द फॉर्मूला ऑफ द करंट नाउ? सो अब करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मैंने आपको ऐसा बताया कि अगर कोई हिसाब से मैं इसका इफेक्टिव ईएमएफ फाइंड कर दूं एंड इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस अगर मैं फाइंड कर देता हूं, तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है उसको मैं ऐसे एक ही सेल है ऐसा सोच सकता हूं जिसका इफेक्टिव ईएमएफ ई इफेक्टिव है, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस आर इफेक्टिव है, और फिर उसके साथ रेजिस्टेंस आर कनेक्ट किया हुआ है. तो इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन व्हाट शुड बी द इक्वेशन ऑफ द करंट? चलो अभी करंट का इक्वेशन क्या होना चाहिए अभी? कोई बताएगा फ्रेंड्स? E effective upon R plus R effective. Yeah. So here the equation of the current should be E effective upon R plus R effective. तो अगर मुझे करंट का फॉर्मूला डिराइव करना है तो मुझे क्या कर डिराइव करना पड़ेगा? मुझे ये पूरे कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव ईएमएफ फाइंड करना पड़ेगा, ये पूरे कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा. चलो सबसे पहले मैं इफेक्टिव ईएमएफ फाइंड करने का ट्राई करूंगा. आस्था है वहां पे? आस्था? Yes, sir. चलो आस्था बताओ कि ये जो पहला जो ब्रांच है, जो सबसे ये ऊपर वाला, उसमें n नंबर ऑफ इन दैट ब्रांच n नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो ये जो एक ब्रांच है, ऊपर का एक ब्रांच, तो उसका इफेक्टिव ईएमएफ क्या होगा? इफेक्टिव ईएमएफ ऑफ ओनली वन रो. चलो क्या होना चाहिए? उसको मैं E1 उसको मैं बोलूंगा, चलो E डैश बोलता हूँ. तो व्हाट शुड बी द इफेक्टिव ईएमएफ ऑफ द ओनली सिंगल ब्रांच? उसमें E1 E2. E1 plus E2 up to या वेरी गुड. En. उसका जो होगा वो E1 plus E2 up to En होगा. कैन आई से इट इज अ समेशन ऑफ EI? Yes. अच्छा मुझे ये बताओ, दूसरे जो रो है, दूसरा रो, उसका इफेक्टिव ईएमएफ क्या होगा? दूसरा रो जो है, सेकंड रो का इफेक्टिव ईएमएफ क्या होगा? मतलब सिर्फ सेकेंड रो का, ओनली सेकंड रो का. तो वही होगा. वही होगा. मतलब जितने भी रो है वो सारे रो का ईएमएफ वही यही है, सिग्मा EI ही है, E1 plus E2 up to EI. तो रो नंबर 1 2 3 या सब m नंबर ऑफ रो है, टोटल m नंबर ऑफ रो है, बट ईच रो इज हैविंग द सिमिलर ईएमएफ समेशन ऑफ EI. अब मेरा ये क्वेश्चन है कि that kind of m number of rows are connected in parallel, so the net EMF of the whole combination, एक रो का जो है वो समेशन ऑफ EI है, दूसरे का भी उतना ही है, तीसरे का भी इतना ही है, ऐसे m नंबर ऑफ रोज 1 2 ऐसे m नंबर ऑफ रोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल. सो द EMF ऑफ द होल कॉम्बिनेशन, चलो पूरे कॉम्बिनेशन का EMF क्या होना चाहिए? E. चलो तनिष है वहां पे. तनिष हाँ सर. बताओ आप क्या होना चाहिए? सर अगर हम पूरे मतलब ये कनेक्शन को ऊपर ऊपर से पैरेलल समझे तो पहले तो E इफेक्टिव अपॉन R E इफेक्टिव R इफेक्टिव प्लस मतलब एक रो का. अच्छा मेरी बात सुनो. मुझे ये बताओ कि if n number of identical cells are connected in parallel, then what is the answer for the net EMF? E upon N. हेलो बोलो फिर से. E upon N. अरे नहीं होता यार. पैरेलल
हाँ, सीरीज में क्या होता है, सीरीज में एनी सीरीज होता में तो है यानी और पैरेलल में क्या होता है। अच्छा वो, हाँ सेम। मैं रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ईएमएफ की बात कर रहा हूँ। तो इफ एन हाँ सर, identical cells are connected in parallel, then what is the net EMF? आइडेंटिकल तो फिर ई रहेगा। वो ई का ई रहेगा, तो यहाँ पे सारे रो आइडेंटिकल ही है। ओके। टोटल m नंबर ऑफ रोज है, देखो ये लॉजिक है, टोटल m नंबर ऑफ रोज है बट ऑल द रोज आर आइडेंटिकल। तो पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव m क्या रहेगा, जो खाली एक रो का है ना वही का एक वही रो का, रहेगा। हाँ बराबर। इज दैट क्लियर टू यू? यस क्या सर, ये चीज समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। I repeat, if n number of cells are connected in parallel, identical cells are connected in parallel, then the effective EMF वो एक का जो है वही वही रहेगा, मतलब E ही रहेगा। तो similarly here all the rows are identical, तो उसके पैरेलल कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव EMF एक रो का जो है वही का वही रहेगा। मतलब एक रो का तो हमने अभी डिस्कस किया कि वो समेशन ऑफ EI है, तो वही रहेगा। तो इफेक्टिव EMF जो है वो हमको मिल गया पूरे कॉम्बिनेशन का। चलो अब मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? आ रही सर। हाँ, अभी मुझे उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर एक बार आपके पास इफेक्टिव EMF है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, तो उसके बाद आप वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो एंड यू विल एबल टू गेट द आंसर। सर हाँ बोलो। सर बट यहाँ पे अलग अलग रो में सेम नंबर ऑफ मतलब ईएमएफ है, पर अगर अलग हो तो फिर। देखो ऐसे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में हजारों टाइप के कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। आपको मैथ्स का एक चैप्टर है ना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, हाँ सर। तो मतलब हम एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का जो सिंपल सा केस है ना वो ले रहे हैं अभी। तो ऐसे तो बहुत सारे केसेस पॉसिबल है। तो एट दैट टाइम आपने जो पहले बोला था ना वही आपको करना पड़ेगा, जो आपने पहले एक फॉर्मूला बोल रहे थे ना, इफेक्टिव अपॉन आर इफेक्टिव। तो हर एक ब्रांच का आपको ईएमएफ फाइंड करना पड़ेगा और आपको हर एक ब्रांच का रेजिस्टेंस भी फाइंड करना पड़ेगा। एंड देन आफ्टर यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। इज इट ओके? हाँ सर। तो यहाँ पे तो सारे ब्रांचेस हमने सेम ले लिया है बिकॉज वी वांट टू मेक द क्वेश्चन सिंपलर। अदरवाइज मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में तो बहुत ही सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। तो वी आर डिस्कसिंग अ सिंपल केस ऑफ द मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, तो अब मुझे इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, पहले एक ब्रांच का इफेक्टिव इंटर रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो ओनली सिंगल ब्रांच इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस of only one row। देखो एक ही रो का इफेक्टिव इंटर रेजिस्टेंस कितना होगा, कंसीडरिंग ओनली वन रो। तो सारे ईएमएफ जो है ना उसके अंदर रेजिस्टेंस है, R1 है, R2 है, मतलब यहाँ पे सभी जगह पे रेजिस्टेंसेस प्रेजेंट है, R1, R2, R3 एटसेट्रा। तो एक ब्रांच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, उसको मैंने R1 डैश बोला हुआ है। तो क्या होगा फ्रेंड्स, बोलो। So they are in series. As they are in series, the resistance will be equals to R1 plus R2 up to Rn. So I can say it is a summation of Ri from 1 to n. चलो मुझे एक ब्रांच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिल गया। अब this kind of this type of how many branches are connected in parallel? M branches are connected in parallel. So net internal resistance, देखो रेजिस्टेंस की बात है तो याद करो, इफ n number of identical resistors are connected in parallel, n number of identical resistances are connected in parallel, then effective resistance was reduced to n times.
तो यहाँ पे m number of branches are connected in parallel, then what is the net internal resistance? R by N. हाँ, तो R by N, बट N नहीं आएगा, यहाँ पे M आएगा, तो यहाँ पे R इफेक्टिव हो जाएगा R by N नहीं बट M, एंड R नहीं R डैश, और वो R डैश क्या था? वो था समेशन ऑफ RI, Sigma. sigma RI by M. So friends, this is the equation for the internal resistance of the whole combination. Friends, now I have the internal resistance, I have the net EMF and net internal resistance. So putting this value in this formula, so now we got the answer that E effective is equals to summation of EI and R effective is equals to summation of RI by N. So this is actually a current equation of the current. One more precise, one more special case. ऐसा assume कर देते हैं, suppose all cells are identical. All cells are identical. चलो ऐसा assume कर ले कि सारे सेल आइडेंटिकल है, तो क्या होगा? न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? n ही हो जाएगा, बिकॉज न्यूमरेटर में एडिशन है EMF का बट n टाइम्स है, एंड डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? NR by M हो जाएगा. तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो तो NME अपॉन MR plus NR. So this is the equation of electric current if the all cells are identical and connected in this kind of mixed combinations. So is that clear to you friends? ये थ्योरी 3 या 4 मार्क्स में आपके एग्जाम में आ सकता है. तो फ्रेंड्स, सेल्स के कॉम्बिनेशंस की बात हम कर रहे थे. We had discussed the series combination of the cells, parallel combination of a cell, and then after we discussed the mixed combination of cell. तो फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा. अभी जैसे ही आज का लेक्चर खत्म होगा तो आपके मोबाइल पे आपको ये 3rd चैप्टर के MCQs एंड 3rd चैप्टर के न्यूमेरिकल्स वैसे मैंने प्रोवाइड कर दिया है आपको. तो 3rd चैप्टर के MCQ एंड थ्योरी आपको लेक्चर खत्म हो जैसे ही खत्म होगा तो आपको मिल जाएगा. जो रिमेनिंग थ्योरीज है, मतलब पूरा थ्योरी का नोट्स वापस से मिल जाएगा एक बार. तो फ्रेंड्स, वापस से हम ये अपने ट्रैक पे आता है. अभी लास्ट में हमने मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल कंप्लीट किया. तो सेल का मतलब सेल के रिगार्डिंग जो भी कुछ था वो यहाँ पे खत्म हुआ. तो सीरीज एंड पैरेलल एंड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन खत्म हुआ. अब एक नया ही टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, एकदम अलग सा. मतलब ये पूरा अभी जो चैप्टर है उसका ट्रैक, मतलब अभी उसका पूरा ट्रैक जो होता ट्रैक है वो पूरा अभी चेंज होने वाला है. तो अब हम नेटवर्क जंक्शन एंड ब्रांच पॉइंट, जंक्शन ब्रांच पॉइंट एंड लूप, नेटवर्क जंक्शन एंड लूप क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. मतलब अभी चैप्टर का पूरा मतलब एक ट्रैक, अलग ही ट्रैक स्टार्ट हो रहा है, एक अलग ही पार्ट स्टार्ट हो रहा है चैप्टर का. तो अभी जो टॉपिक है दैट इज व्हाट इज नेटवर्क, what is a junction और ब्रांच पॉइंट एंड what is a loop. तो नेटवर्क किसको बोलते हैं? तो जिसको मैं कोई ऐसा सर्किटरी है, सर्किट मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, ये सब कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है. a circuit made by a different components like a resistor, capacitor, inductor, battery, diode, transistor, etc., which cannot be considered as a simple series or simple parallel combination. So that kind of circuit, that kind of complex circuit is known as a network. वैसे नाम सुन के ही आपको पता चल जाएगा नेटवर्क का मतलब क्या हुआ. नेट का मतलब ही कॉम्प्लेक्स जैसा हुआ नेटवर्क. तो ऐसा सर्किट
जो अलग अलग कंपोनेंट के द्वारा बनता है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर एटसेट्रा, कि जिसको हम सिंपल सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन कंसीडर नहीं कर सकते हैं, तो उसको नेटवर्क बोलते हैं. सो इन द सिंपल लैंग्वेज, एक्सक्यूज मी, network is a complex circuit in simple language. जंक्शन क्या है? Look at this circuit. तो इसको मैं नेटवर्क बोल सकता हूं. देखो, क्या आपके मोबाइल में ये सर्किट आ गया? देखो तो आ गया. Yes, sir. यस सर. तो ये जो सर्किट है उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन भी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी है. देखो, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन है, कुछ ब्रांचेस पैरेलल में भी कनेक्ट किया हुआ है. मतलब ये जो है ना, उसको हम नेटवर्क बोल सकते हैं. ये जो सर्किट है दैट इज अ नेटवर्क. अब यहाँ पे देखो, ये पॉइंट ए देख लो. तो वहां पे कितने कंडक्टर्स वहां पे कनेक्ट हो रहे हैं? 2 3. हाँ, ये पॉइंट यहाँ पे कितने कंडक्टर्स कनेक्ट हो रहे हैं? 3. ये पॉइंट देख लो, यहाँ पे कितने कनेक्ट हो रहे हैं? 2. तो फ्रेंड्स, अ पॉइंट in the network at which minimum 3 conductors, minimum मतलब 3 or greater than 3, the point on the network at which minimum 3 conductors are meeting is called junction or branch point. A point in a circuit in which minimum 3 conductors are meeting is said to be a junction or branch point. मतलब यहाँ पे ये जो A है एंड जो D है उसको हम जंक्शन बोल सकते हैं, बट ये जो पॉइंट है ये जंक्शन है या नहीं है? क्या कैन आई से दिस इज द जंक्शन और नॉट? No, नॉट. नहीं है. इट इज तो वो नॉट. तो बैंड किया हुआ है. वहां पे 2 ही कंडक्टर at that point only 2 conductors are meeting, so it is not a junction. It is not a junction, but these two are the junction. The point at which minimum 3 conductors are meeting is called a junction. Junction को branch point भी बोल सकते हैं. It is also considered to be a branch point. चलो, जंक्शन क्या है ये पता चला, नेटवर्क क्या है ये पता चला. अब लूप, नाम सुन के ही पता चल जाएगा कि लूप का मतलब क्या है. तो लूप का मतलब है क्लोज्ड सर्किट. तो यहाँ पे 3 लूप है. ये लूप 1 है, ये दूसरा लूप है और ये तीसरा लूप है. सपोज के मैं इसको बोलता है ए बी, चलो इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं, इसको डी ई एंड इसको एफ बोलेंगे. तो फ्रेंड्स, ये जो ए बी सी डी ए जो है, मतलब ये हुआ. तो ये लूप नंबर 1 है, ए बी सी डी ए. दूसरा होगा ए डी ई एफ ए, ये दूसरा लूप हुआ. और तीसरा हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ ए, मतलब ये पूरा. तो मतलब जितना भी क्लोज सर्किट है, जितने भी क्लोज सर्किट है, उस सारे को हम उस सारे को लूप बोल सकते हैं. तो आर यू एबल टू अंडरस्टूड द थ्री वर्ड नेटवर्क, जंक्शन एंड लूप? इज दैट क्लियर टू यू? क्या ये समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. ये SQ में आ सकते हैं. मतलब क्वेश्चन नंबर 29, डिफाइन नेटवर्क, जंक्शन एंड लूप, इज फॉर द SQ.
Question number 30. Write the Kirchhoff's first law and explain. तो मुझे किर्चॉफ फर्स्ट लॉ यहाँ पे उसका स्टेटमेंट एक्सप्लेन करना है. तो सिंपल सी बात है. देखो यहाँ किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ ऐसा है कि कोई भी पॉइंट पे या कहीं पे भी नेटवर्क के कोई भी जंक्शन या कोई भी पॉइंट पे जितना करंट एंटर होता है उतना ही करंट वहां से बाहर निकलेगा. लुक एट द जंक्शन. यहाँ पे I3 एंटर हो रहा है एंड I1 एंड I2 बाहर निकल रहा है. तो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली I3 मस्ट बी इक्वल्स टू, बिकॉज ये जो करंट एक्चुअली है क्या? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज एक्चुअली द करंट? चलो कोई बताएगा व्हाट इज द करंट? करंट है क्या एक्चुअली? Flow of charges. It is the charge flowing per unit time. It is nothing but it is the charge per unit time. तो obviously the conservation of the charge कहीं पे प्रोड्यूस नहीं हो सकता है. चार्ज को हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं. तो चार्ज जितना एंटर होता है कोई पॉइंट पे उतना ही बाहर निकलेगा. मतलब वही चीज तो करंट के बारे में कह सकते हैं, बिकॉज करंट आफ्टर ऑल द चार्ज पर टाइम ही है. मतलब कोई जंक्शन के पास जितना करंट एंटर होगा उतना ही बाहर निकलेगा. दिस इज व्हाट इज नोन एज अ Kirchhoff's first law. This is known as a Kirchhoff's first law. देखो क्या है कि सिंपल सीरीज या सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, तो उसको हम ओहम्स लॉ के द्वारा उसको एनालाइज कर सकते हैं. कोई भी नेटवर्क को एनालाइज करना उसका मतलब क्या हुआ कि उसके अलग अलग ब्रांच में से करंट कितना फ्लो हो रहा है वो फाइंड करना. नेटवर्क का एनालिसिस करना उसका मतलब ऐसा होता है कि अलग अलग ब्रांच में कितना करंट पास हो रहा है वो फाइंड करना, उसको एनालिसिस ऑफ द नेटवर्क बोलते हैं. A simple series and parallel combination can be analyzed by just using the Ohm's law, and we had done this. हमने series and parallel combination में effective resistance के formula find किया by just application of the Ohm's law. But जब कोई नेटवर्क की बात है जो बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट है, तो उसको एनालाइज करने के लिए ओहम्स लॉ आर नॉट सफिशिएंट, वो सफिशिएंट नहीं है. तो उसको एनालिसिस करने के लिए किर्चॉफ्स लॉ और बाकी भी बहुत नॉर्टन, थेवेनिन ऐसे कुछ है, वो आप इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, बट अभी आपके सिलेबस में किर्चॉफ्स लॉ है. तो कुछ नेटवर्क जो है उसको हम ओहम्स लॉ से हम उसको एनालाइज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कुछ ज्यादा डीप में जाने की जरूरत होती है. So that is why the Kirchhoff's law comes under the existence. So Kirchhoff had given the two laws. Number one, the first law is for the junction law. तो कोई भी जंक्शन के पास जितना करंट एंटर होगा उतना ही बाहर निकलेगा. अगर कोई आपको ऐसा पूछता है कि Kirchhoff's first law is actually it is actually representing which law, तो आप क्या बोलोगे? जंक्शन लॉ. वो जंक्शन लॉ है, बट इट इज एक्चुअली अ व्हिच फंडामेंटल लॉ? इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हिच फंडामेंटल लॉ? Conservation of charges. या ऑब्वियसली इट इज द बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के द्वारा ही प्रूव हुआ है. तो हम उसको मतलब सिंपल सी बात ऐसी है कि कोई भी जंक्शन में जितना करंट एंटर होगा उतना ही बाहर निकलेगा. तो यहाँ पे देखो तो I3 एंटर हो रहा है एंड I1 I2 बाहर निकल रहा है, बट उसको थोड़ा मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ? I1 plus I2 plus minus I3 equals to 0. क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? I1 plus I2 plus minus I3 equals to 0. Yes or no? अरे हाँ या ना तो बोल दो. क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? Yes, sir. ओके. तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि summation of all the currents are 0. इसको एल्जेब्रिक सम बोलते हैं. जो प्लस एंड माइनस के साथ जो सम होता है उसको एल्जेब्रिक सम बोलते हैं हम. सो एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स एंटर एट द जंक्शन इज ऑलवेज 0. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड Kirchhoff's first law. द एल्जेब्रिक सम एट द जंक्शन इज ऑलवेज 0. एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव को लेके. अब किसको पॉजिटिव लेना किसको नेगेटिव लेना वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो.
सपोज कि आप एंटरिंग करंट को पॉजिटिव लेते हो तो आपको लिविंग करंट को नेगेटिव लेना है, और सपोज आप लिविंग करंट को पॉजिटिव कंसीडर करते हो तो एंटरिंग करंट को नेगेटिव लेना है। वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो, y माइनस एक्स इक्वल टू भी 0 ही होता है। तो अब कीचॉस फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट कुछ ऐसा होगा कि एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट एंटरिंग एंड द जंक्शन इज ऑलवेज 0, या ऐसा भी कह सकते हैं कि एट एनी जंक्शन द सम ऑफ द करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स लिविंग द जंक्शन। तो आप दोनों हिसाब से ये बोल सकते हो, एल्जेब्रिक सम 0 है ऐसा भी बोल सकते हो, या सिंपल जितना करंट एंटर हो रहा है उतना ही करंट लीव करेगा। तो जो आपको सर याद रहे। बोलो, हाँ बोलो। सर आमा करंट नो फ्लो समझाओ ने क्याथी क्या करंट जाए છે એટલે પેરેન્ટ કરંટ જ્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય। देखो આ सपोज સર્કિટ માં કરંટ નો ફ્લો જ ખબર નહીં પડતી। करंट का जो फ्लो है ना, वो आपको उसका मतलब यू कैन कंसीडर द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इन एनी ऑफ द डायरेक्शन। आप सर्किट के अंदर आपको पता नहीं है कोई ब्रांच में कहाँ पे कैसे करंट फ्लो रहा है, तो आप उसको कहीं पे भी एक बार बता दो कोई भी डायरेक्शन पे, फिर उसको एनालाइज करो। देखो आपका क्वेश्चन ऐसा है कि सर ये करंट कैसे ड्रॉ किए वो पता नहीं है। अच्छा, तो आज के हाँ वही। हाँ 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 बाय द नेक्स्ट लेक्चर अब किर्चॉफ्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ हम पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं आपको ऐसे सर्किट सॉल्व कराऊंगा कि जिसके अंदर अलग अलग ब्रांच में करंट कौन से डायरेक्शन में है वो पता नहीं होगे। तो हम वहां पे क्या करेंगे कि कोई भी डायरेक्शन में हम करंट को अज्यूम कर लेंगे। पहले करंट को हम किसी भी डायरेक्शन में अज्यूम कर लेंगे, और फिर हम उस नेटवर्क का एनालिसिस करेंगे, 3-4 इक्वेशन निकालेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो हमको अलग अलग ब्रांचेस के करंट मिल जाएगा। अगर करंट का आंसर नेगेटिव आता है तो हमको ऐसा समझने का है कि हमने जो डायरेक्शन अज्यूम किया था करंट का वो गलत है, करंट उसके अपोजिट ब्रांच में फ्लो होना चाहिए। और अगर हमारा आंसर पॉजिटिव है तो हमारा अजम्पशन सही है। वो सब हम ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका क्वेश्चन ऐसा था कि सर हमको पता कैसे चले कि कौन से ब्रांच में किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करना है। तो वैसे रूल ऐसा है कि करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, बट मुझे पता ही नहीं है कि अलग अलग एक मिनट, जस्ट अ मिनट, पानी का ग्लास छोड़ के ना। तो अगर हमको अलग अलग ब्रांच में करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो रहा है वो पता नहीं है, तो हम वहां पे किसी भी डायरेक्शन में अज्यूम कर सकते हैं। उसको एनालिसिस के द्वारा उसका अगर आंसर नेगेटिव आता है तो हमको ये समझना है कि हमारा अज्यूम्ड डायरेक्शन रॉन्ग है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो वैसे करंट तो फ्लो होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, बट पता ही नहीं है कहीं पे कि कहाँ पे हाई पोटेंशियल है कहाँ पे लो पोटेंशियल, पता ही नहीं है। तो ऑन दैट काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस आपको ये चीज करनी होती है जो मैंने अभी आपको बताया। इज दैट क्लियर टू यू तनिष? यस सर। सर बट आमा 45 वोल्टेज वाला जो सेल थे तो ઊંધો लगाया था सर्किट में। हाँ, क्या मतलब वो मैं अभी ऐसा बोल रहा हूँ कि वो मत सोचो, इसमें तो मैंने आर्बिट्ररीली कोई भी डायरेक्शन में करंट बता दिए है। वो पॉसिबल है कि उसको अगर मैं एनालिसिस, देखो ये एक काम करते हैं, इसी सर्किट को मैं एनालाइज करूंगा आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ द किर्चॉफ सेकंड लॉ। किर्चॉफ के सेकंड लॉ के खत्म होने के बाद मैं इसी सर्किट को एनालाइज करूंगा। ये कोई उल्टा पुल्टा लगाया ऐसा कुछ नहीं है, आप तो कहीं पे भी बैटरी कनेक्ट कर सकते हो ना, और उसके हिसाब से करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पे मैंने I1, I2, I3 रैंडमली अज्यूम कर लिया कैसे डायरेक्शन है, वो वाकई में ऐसे है कि नहीं वो तो एनालिसिस करने के बाद पता चलेगा। तो इसी सर्किट को मैं एनालाइज करूंगा ये किर्चॉफ सेकंड लॉ खत्म होने के बाद। तो अभी तो हमने यहाँ पे ऐसा अज्यूम करके रखा हुआ है कि I1, I2 एंड I3 इस हिसाब से फ्लो हो रहे हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। आपका क्वेश्चन वैसे वही अभी भी वहां पे ही पड़ा है कि हमको पता कैसे चले कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करना है। तो वो सर्किट को देख के पता नहीं चलेगा। अगर सिंपल सर्किट है, सिंपल सर्किट एक ही बैटरी वाला, तो बैटरी के पॉजिटिव में से निकालो, नेगेटिव में एंटर कर दो, तो खत्म बात। एक ही सर्किट है तो एक ही बैटरी है तो
बट ये ऐसे कॉम्बिनेशन है, नेटवर्क है, तो नेटवर्क में नहीं पता चलेगा कि कौन से ब्रांच में कौन से डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके लिए एनालिसिस करना पड़ता है, इक्वेशन डिराइव करना पड़ता है, वो सब चीज ही हम अभी इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो ये किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट 2 मार्क क्वेश्चन। तो स्टेट एंड एक्सप्लेन द किर्चॉफ्स सेकंड फर्स्ट लॉ। तो ये खत्म हुआ। देखो एक बार क्वेश्चन देख लो आपने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो पढ़ लो एक बार। तो at any junction the sum of the current entering and the is equals to the sum of the current leaving। और यहाँ पे दिया हुआ है कि इन द सर्किट करंट आउट फ्रॉम द जंक्शन ए इज I1 and I2 and current entering is equals to I3, so I can say I3 is equals to I1 plus I2। The proof of this rule can be found by the fact that current are steady and there is no accumulation of the charge at the junction or at any point of line, that means the charge is conserved। मतलब यहाँ पे किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ हम किसके द्वारा प्रूव कर सकते हैं, तो इट by the conservation of the charge, so that is why we can say the Kirchhoff's first law is actually based on the conservation of charge। and उसको अलग दूसरे हिसाब से भी बोल सकते हैं, उसका स्टेटमेंट जो है वो ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि the algebraic sum of the current flowing through any junction is equals to 0। algebraic sum 0 होता है, ऐसे भी हम कह सकते हैं, बट हम इसके ये algebraic sum के बदले हमको क्या याद रखना इजी रहेगा, जितना करंट जंक्शन में जा रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है, so that will be more easier to remember। entering current is equals to leaving current is more easier to remember। is that clear to you friends? यस सर। ओके मैं कुछ एग्जाम्पल अभी देने वाला हूँ, कुछ एग्जाम्पल अभी मैं दे रहा हूँ, तो आप वो एग्जाम्पल को देख के मुझे बताना कि व्हाट इज द करंट फ्लोइंग फ्रॉम द ब्रांच। चलो इसको सोच के बताओ। एक और क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ये दोनों को क्वेश्चन को सोच के आपको आंसर देना। दोनों क्वेश्चन ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, तो आपको इन दोनों का आंसर सोच के मुझे बताना है कि व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दिस नेटवर्क। चलो इसको सॉल्व करके दो मुझे। तो पहले मैं कुछ अच्छी तरह से दिख नहीं रहा। और यहाँ पे 1 एम्पियर, आप आपके मोबाइल को जूम कर सकते हो, आपके मोबाइल के स्क्रीन को एक बार जूम करके देखो तो देखने में आ जाएगा आपको। मतलब एक तो पहली बात हाँ मोबाइल को हॉरिजॉन्टल रखो और जूम करो। सर, बट वो ए में जो वो वाला उसमें तो आपने डायरेक्शन दिया ही नहीं है। नहीं, मुझे जो देना था वो सब मैंने दे दिया। अभी आपको खुद को सब कुछ सोच के बताना है कि क्या होगा। जहां पे डायरेक्शन देना है वहां पे दे दिया है मैंने। बोलो, आप 2 मिनट का टाइम। सर सेकंड में 22।
सर सर आपका माइक म्यूट है। अच्छा, सेकंड में 22 सेकंड में 23, नहीं 2 22 इज द राइट आंसर। ओके, चलो कैसे सॉल्व किया? में वो हाँ सर सेकंड में एक तो 20 करंट से मैंने मतलब स्टार्ट किया, वहाँ पे 2 डाइवर्जन हो रहे, 2 एम्पियर और एक x एम्पियर, तो x 20 माइनस 2 18, फिर 18 ओके, और 5 आपने मिलके यहाँ से स्टार्ट, वेट अ मिनट, यहाँ से स्टार्ट किया 2 एम, जंक्शन में एंटर हुआ है 20 और उसमें 2 तो बाहर निकल गया, तो कितना बाहर निकलना बाकी है? 18 18 एम्पियर। नाउ लुक एट दिस जंक्शन, यहाँ पे 5 एंटर हो रहा है और 18 एंटर हो रहा है, तो कितना बाहर निकलेगा? 23 23 बाहर निकलेगा। ओके गुड। अब लुक एट दिस जंक्शन, यहाँ पे 23 तो जा रहा है और उसमें से 3 तो बाहर निकल गया, तो कितना बाहर निकलना बाकी है? 20 ये जंक्शन में 23 जा रहा है, उसमें से 3 तो बाहर निकल गया, तो कितना बाहर निकलना बाकी है? 20। एंड लुक एट दिस जंक्शन, 2 एंटरिंग 20 एंटरिंग, तो कितना बाहर निकलेगा? तो क्या फ्रेंड्स ये समझ में आया आपको? Yes, sir. तो सिमिलर मेथड है। तो अच्छा हाँ, यहाँ पे मैं देना रह गया, सही बात है, आपको यहाँ पे देना रह गया है, यहाँ पे देना रह गया है। ओके चलो, assume that I had given a 5 एम्पियर। 13 तो सबसे पहले जंक्शन 1 को अस्यूम करते हैं, तो यहाँ पे 8 एम्पियर एंटर हो रहा है, तो 8 को निकलना पड़ेगा, उसमें से 1 निकल जा रहा है, तो 1 निकल रहा है, तो कितना बाकी होगा? 7 बाकी होगा। चलो 1 बाहर निकल गया, 7 बाहर निकल गया। अब लुक एट दिस जंक्शन, 7 एंटर हो रहा है, 5 एंटर हो रहा है, तो कितना बाहर निकलेगा? 12 एम्पियर। अब 12 एंटर हुआ, 1 एंटर हुआ, तो कितना बाकी बचेगा? 13 एम्पियर। तो इस हिसाब से किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ आप अप्लाई कर सकते हो, बट अगर आपको इससे शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना है, अभी मैं आपको शॉर्टकट मेथड सिखा रहा हूं। तो अगर ये शॉर्टकट मेथड करना है, तो आपको ऐसा सोचना है कि ये जो पूरा जो मतलब एक लूप बन रहा है ना, उस लूप को आपको एज ए सिंगल जंक्शन कंसीडर करना है। अभी मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड सिखा रहा हूं। तो ये जो भी मतलब पूरा ये लूप है ना, जो क्लोज सर्किट है, उसको जस्ट एज सिंपल, उसको ये लूप को जस्ट एक सिंपल जंक्शन है ऐसा सोच लो। ये जो लूप है उसको एक सिंगल जंक्शन है ऐसा सोच लो। तो जो फर्स्ट केस है उसमें जो जंक्शन है ना, उसमें देखो ये जंक्शन, ये लूप मतलब एक जंक्शन हो गया, तो उसमें 8 एंटर हो रहा है, इसमें 8 एंटर हो रहा है और उसके बाद यहां से 5 एंटर हो रहा है, तो ऑब्वियसली कितना बाहर निकलेगा? ये पूरे को एज अ सिंगल जस्ट ये जो पूरा जो लूप है उसको एक जंक्शन ही कंसीडर कर दो। अंदर के करंट को भूल जाओ, अंदर के करंट सारे भूल जाओ, बाहर से 8 एंटर होगा, 5 एंटर होगा, कितना बाहर निकलना चाहिए? 13 एम्पियर, दैट शीट। इसको पूरे को एक सिंगल जंक्शन कंसीडर कर दो। 20 एंटर हुआ, 5 एंटर हुआ, 3 बाहर निकल गया, तो कितना बाहर निकलने का बाकी रहा? सोचो। तो 25 माइनस 3 मतलब 22 बाहर निकलना बाकी रहा। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? Yes, sir. क्या ये समझ में आया? दैट इज अ शॉर्टकट, इट इज अ शॉर्टकट ट्रिक। इज दैट क्लियर? यस शॉर्टकट समझ में आया आपको? यस सर। ओके अब मैं आपको किर्चॉफ सेकंड लॉ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, बट बिफोर स्टार्टिंग द किर्चॉफ सेकंड लॉ मुझे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको पूछना पड़ेगा। तो मेरे क्वेश्चंस के आंसर दो तो ऑटोमेटिकली किर्चॉफ सेकंड लॉ आपको इजीली आपको समझ में आ जाएगा। मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ रहा हूं, अगर आप उसके आंसर दोगे
तो ऑटोमेटिकली किर्चॉफ सेकंड लॉ आप इजीली उसको समझ पाओगे। सो मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि अज्यूम करो कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये 3 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 2 एम्पियर करंट पास हो रहा है, और मैंने ऐसा देखा कि बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है। तो पॉइंट ए जो है उसका पोटेंशियल क्या होगा? चलो ये मेरा क्वेश्चन है। पॉइंट बी का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो पॉइंट ए का पोटेंशियल क्या होगा? सोच के बताओ। है कोई माइका लाल के माइकी लाली? एनीबडी गॉट द आंसर? तनिष? सर 14 सर। ओके, according to Ohm's law, a potential difference between the two ends of the resistance can be given by IR. According to Ohm's law, potential across the resistance can be given by IR. अब मुझे ये बताओ कि VA माइनस VB लिखना चाहिए या VB माइनस? डिफरेंस तो लिखना है, तो VA माइनस VB लिखना चाहिए या VB माइनस VA? VA VA minus minus VB। VB. current is always flow from high potential to low potential. तो यहाँ पे करंट A से B तक फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ऐसा हुआ कि पोटेंशियल ऑफ A should be higher than the B. That's why I need to write a VA minus VB is equals to IR. Why? Because the potential of A is larger than the potential of B. अब VA मुझे फाइंड करना है, VB का वैल्यू मुझे 10 पता है, I is a 2 एम्पियर, R is a 3, तो मतलब पोटेंशियल एट द A is equals to 16 वोल्ट। तो ये A का पोटेंशियल मुझे मिल गया 16 वोल्ट। चलो, इसके द्वारा मुझे ये पता चला कि अगर मैं, मेरे जो थॉट्स है, अगर मैं उसको A से B ले जाता हूं, अगर हम लोग A से B जाते हैं और करंट मतलब करंट के डायरेक्शन में जाते हैं, तो करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल में इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा? देखो A का पोटेंशियल और B का 10 हो गया, मतलब कंक्लूजन क्या निकला कि अगर हम कोई सर्किट में देखते हैं और देखने से बाद हमारा जो सोचने का डायरेक्शन, हमारा जो सोचने का डायरेक्शन है वो करंट के साथ है, तो पोटेंशियल में इंक्रीमेंट आएगा डिक्रीमेंट आएगा? Decrement. डिक्रीमेंट। हाँ, सो कंक्लूजन, if we go from resistance in the direction of current, in the direction of current,
if we go from the resistance in the direction of current, then potential decreases or increases? Decreases. Decreased by, then potential is a decreased by IR. And if we go opposite to the current, मतलब B से अगर B पे, पहले हम B को सोचते हैं, मतलब B पे 10 है और करंट के अपोजिट में जाके करंट के अपोजिट जाके A पे स्टॉप होते हैं, तो वहां पे A पे बढ़ जाता है. देखो, तो if we go opposite to the current, સર રેઝિસ્ટર ઊંધું લગાવી દીધું હોય તો? શું કહો છો? રેઝિસ્ટર ઊંધું લગાવી દઈએ તો? અલા રેઝિસ્ટન્સ તો રેઝિસ્ટન્સ થઈ જાય, એમાં કઈ પોલારિટી ના હોય. રેઝિસ્ટન્સ નો मतलब શું થયો? एक वायर है. रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या हुआ? एक वायर है, तो वायर को आप कैसे भी कनेक्ट करो, वो जब चार्ज उसमें से पास होगा तो उसको रेजिस्टेंस तो मिलेगा ही मिलेगा. इट इज नॉट लाइक अ बैटरी. इफ वी गो इन द अपोजिट टू द करंट के अपोजिट जाते हैं तो क्या होगा? Potential increases. हाँ, then potential is increased by IR. तो पोटेंशियल विल बी इंक्रीज्ड बाय IR. तो ये कंक्लूजन हमको मिला यहाँ पे. अब दूसरी बात, मुझे ये बताओ कि ये बैटरी है, तो बैटरी के कौन से पोटेंशियल पे, मतलब बैटरी के ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो बैटरी का जो पॉजिटिव पोल होता है वहां पे पोटेंशियल ज्यादा होता है, बैटरी का जो नेगेटिव पोल होता है वहां पे पोटेंशियल कम होता है. तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि इफ वी मूव फ्रॉम द बैटरी, देखो बैटरी का जो पॉजिटिव पोल होता है वहां पे पोटेंशियल ज्यादा होता है, नेगेटिव पोल पे पोटेंशियल कम होता है. तो रेजिस्टेंस में से जो पास होते हैं तो क्या होता है वो मैंने दिखा दिया आपको. अब ये दूसरा केस है, ये केस 1. रेजिस्टेंस में क्या होता है? अब बैटरी की बात करते हैं, तो अगर बैटरी में से पास होते हैं, so if we move from बैटरी, अगर बैटरी में से पास होते हैं एंड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव पोल ऑफ अ बैटरी, देन देखो तो पोटेंशियल में क्या होगा? अगर मैं पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता हूं तो पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा? Decrease होगा. हाँ, विल डिक्रीज, बिकॉज पॉजिटिव पोल पे पोटेंशियल ज्यादा होता है, नेगेटिव पोल का पोटेंशियल कम होता है. इट इज डिक्रीज्ड बाय इट्स EMF. मतलब सपोज कि 50 वोल्ट की बैटरी है, तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हो तो 50 वोल्ट जितना डिक्रीमेंट आएगा. बट इफ वी मूव फ्रॉम अ नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल, अब हमारे जो थॉट्स है वो अगर नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, हम सोचते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो क्या होगा? Potential increase. हाँ, देन पोटेंशियल is increased by its EMF.
तो ईएमएफ जितना इंक्रीमेंट होगा। हाँ, यहाँ पे बैटरी को हमने आइडियल कंसिडर किया है, बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस 0 कंसिडर किया है, कंसीडरिंग आइडियल बैटरी। सर वो आपने अभी 50 वोल्ट बैटरी का एग्जांपल लिया, वो फिर से बोलो तो। हाँ, सपोज के ये बैटरी का जो वोल्टेज है ना 50 वोल्ट है, राइट। तो यहाँ पे सपोज के वोल्टेज 100 वोल्ट है, यहाँ पे ये पॉइंट पे। तो यहाँ सपोज कि यहाँ पे 125 वोल्ट है, तो ये पॉइंट है वहां पे 125 वोल्ट है। तो इसका मतलब ऐसा होगा कि यहाँ पे पोटेंशियल होगा 75 वोल्ट। पॉजिटिव का ज्यादा होता है, नेगेटिव का कम होता है, बट वो जो डिफरेंस होता है वो उसके ईएमएफ जितने होते हैं। इज इट क्लियर? सर बैटरी अपने वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज सप्लाई कर सकती है? अरे ये तो नेटवर्क का कोई पार्ट है भैया। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है ना कि 200 वोल्ट का बैटरी हो यहाँ पे। ये तो मैंने कोई नेटवर्क का कोई पार्ट मैंने उठा के रखा हुआ है, ये नेटवर्क का कोई मैंने पार्ट उठा के रखा हुआ है। तो इस पॉसिबल है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है ना। यहाँ पे 200 वोल्ट का बैटरी है, यहाँ पे 50 वोल्ट का बैटरी है, तो पॉसिबल है कि यहाँ पे 50 से ज्यादा भी वोल्टेज हो सकते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? सर तो अगर सिंपल सर्किट होता तो? अरे सिंपल सर्किट होता तो ये सब करने की क्या जरूरत ही थी। तो जस्ट कीचो अच्छा हाँ, जरूरत ही, तो वो तो जस्ट आप ओम्स लॉ से हम प्रूव कर सकते थे। तो वो तो वही तो प्रॉब्लम है, इसीलिए तो हमने ये कीचोस लॉ पढ़ रहे हैं अभी हम। इज दैट क्लियर? यस सर, यस सर। तो इसीलिए तो कीचोस लॉ, मतलब अभी आपको समझ, अभी आपने यहाँ पे कंक्लूजन क्या मिला हमको कि जब हम रेजिस्टेंस में से पास होते हैं तो विद द करंट है तो नेगेटिव करना है, अपोजिट द करंट है तो पोटेंशियल को बढ़ाना है। और अगर बैटरी में से पास होते हैं तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो मतलब डिक्रीज करना है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो मतलब इंक्रीज करना है पोटेंशियल में। सो ये आपको अभी आपको जस्ट सोचना है। इज दैट क्लियर टू यू? आई रिपीट, अगर आप रेजिस्टेंस में से पास हो रहे हो और अगर आप करंट के डायरेक्शन के साथ में हो तो आपको पोटेंशियल में डिक्रीमेंट करना है, कितना? आईआर जितना। बट अगर आप रेजिस्टेंस में पास होने के टाइम करंट के अपोजिट हो तो आपको पोटेंशियल में आईआर जितना इंक्रीमेंट करना है। तो ये रेजिस्टेंस की बात खत्म। अब बैटरी, अगर आप बैटरी में से पास हो रहे हो और आपको ऐसा पता चला कि आप बैटरी के पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हो, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि आपको डिक्रीमेंट करना है पोटेंशियल में। कितना डिक्रीमेंट करना है? उसके खुद के ईएमएफ जितना। वाइसे वर्सा, अगर आप बैटरी में से पास हो रहे हो और नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल जा रहे हो, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो आपको क्या करना है? इंक्रीमेंट करना है। कितना इंक्रीमेंट करना है? तो उसके ईएमएफ जितना इंक्रीमेंट करना है। तो ये दो चीज हम ध्यान में रखेंगे। और अब हम किरचॉफ सेकंड लॉ प्रूव करने वाले हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इट इज आस्क्ड इन द 4 मार्क, 4 मार्क्स में आ सकता है ये क्वेश्चन। तो किरचॉफ सेकंड लॉ अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। इट कैन बी आस्क्ड एज अ 4 मार्कर क्वेश्चन। तो मैं शेयर कर रहा हूं नोट्स। तो राइट एंड एक्सप्लेन द किरचॉफ्स सेकंड लॉ। तो क्या लिखा है देखो, द एल्जेब्रिक सम of the change in the potential for the closed loop involving the resistance and cells is always zero। मतलब पोटेंशियल का एल्जेब्रिक सम क्लोज्ड लूप के लिए 0 होता है। Kirchhoff's first law was the junction rule and the Kirchhoff's second law is the loop rule। देखो यहाँ पे Kirchhoff's मैं अभी सेकंड लॉ एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूं। तो मैंने कोई आर्बिटरीली मैंने एक नेटवर्क यहाँ पे ले लिया है। आर्बिटरीली कोई एक नेटवर्क यहाँ पे मैंने अज्यूम कर लिया। क्या आपके मोबाइल में ये नेटवर्क दिख रहा है? Yes, sir. एक्चुअली इट इज द पार्ट, इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ नेटवर्क। कोई नेटवर्क का एक हिस्सा, नेटवर्क का एक पार्ट मैंने उसको फोटोग्राफ लेके यहाँ पे लगा दिया है। कोई नेटवर्क, ये पूरा नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क का एक पार्ट है। तो यहाँ पे नेटवर्क का कोई पार्ट है। सपोज के हम हमारे जो थॉट्स है वो ए से स्टार्ट करते हैं। अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल वी ए है।
और मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ वापस से ए पे आता हूँ। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरे थॉट्स को घुमाते घुमाते हुए मैं वापस से पॉइंट ए पे आने वाला हूँ, और मैं पोटेंशियल में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को कैलकुलेट करने वाला हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ए। मैंने पॉइंट ए से स्टार्ट किया, मतलब वहां पे मैंने देखा तो मुझे पता चला कि पोटेंशियल वी है। चलो अब मैं ए टू बी जा रहा हूँ। चलो ए से बी पे जा रहे हैं हम, ए टू बी। तो ए टू बी जा रहा है तो क्या होगा सोचो। तो पहले तो मुझे रेजिस्टेंस में से पास होना पड़ेगा, तो मैं है ना करंट के साथ पास हो रहा हूँ, तो मतलब क्या होगा सोचो, पोटेंशियल में इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा? Decrement. अच्छा, अब मैं करंट के साथ जा रहा हूँ तो पोटेंशियल में कितना डिक्रीमेंट होगा? IR जितना. आई आर जितना। तो यहाँ पे आई शुड से वी ए था यहाँ पे, बट मैं जैसे यहाँ पे पहुंचा यहाँ पे, तो वो पोटेंशियल हो जाएगा V1 माइनस I1R1। अब मैं बैटरी में से पास हो रहा हूँ और बैटरी के पॉजिटिव और से नेगेटिव में जा रहा हूँ। देखो, तो पोटेंशियल में इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा? डिक्रीमेंट, अरे नेगेटिव सॉरी इंक्रीमेंट, सॉरी कितना इंक्रीमेंट होगा? E1 जितना। ईएमएफ जितना। चलो बी पे मैं आ गया, तो मुझे बी पे इतना पोटेंशियल मिलेगा, पॉइंट बी पे मुझे इतना पोटेंशियल मिलेगा, बट मुझे और आगे बढ़ना है। तो पॉइंट बी पे मुझे इतना पोटेंशियल मिल जाएगा, बट मुझे और आगे बढ़ना है। अब मैं बी से सी जा रहा हूँ, तो बी से सी में जा रहा हूँ, तो मैं ये क्या होगा, तो Decrease होगा potential. अपोजिट टू। तो देखो करंट का डायरेक्शन यहाँ पे ऐसा बी टू सी दिखा, सी टू बी दिखाया, और मैं अपोजिट टू द करंट जा रहा हूँ, उसका मतलब क्या होगा? Increase होगा. पोटेंशियल में I2R2 जितना इंक्रीज होगा। अब मैं यहाँ पे सी पे पहुंच गया, मतलब सी पे मुझे इतना, सी पे मुझे इतना पोटेंशियल मिलेगा, बट मैं और आगे बढ़ता हूँ। मेरा जो डायरेक्शन, सोचने का डायरेक्शन है, वो ये ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब मैं ये दूसरे बैटरी के पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो पोटेंशियल यहाँ पे जो था उससे कम हो जाएगा, बिकॉज आई एम मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो मुझे ये जो भी पोटेंशियल यहाँ पे सी पे इतना था, इतना पोटेंशियल सी पे था, तो उससे कम होगा। कितना कम होगा? E2 जितना। चलो यहाँ पे मैं आ गया, अब और करंट को, और मुझे जाना है ये रेजिस्टेंस पे से, मैं करंट के साथ हूँ, तो क्या होगा? डिक्रीमेंट होगा, तो क्या होगा? करंट के साथ हूँ मैं, तो क्या होगा? वहाँ पे डिक्रीज वोल्टेज। वोल्टेज में डिक्रीमेंट होगा I3R3। अब मैं करंट के, अब मैं डी से ही जा रहा हूँ और करंट के सामने हूँ, करंट के सामने हूँ, देखो डी से ही, तो क्या होगा? प्लस I4 R4। I4 अब वापस से मैं E2A जा रहा हूँ, तो E2A जा रहा हूँ, तो वापस से मुझे इंक्रीमेंट मिलेगा, बिकॉज प्लस I5 R5। और वापस से मैं ए पे आ गया, तो ए पे मुझे पोटेंशियल वापस से कितना मिलना चाहिए मुझे? जो वही, देखो कोई भी सर्किट के अंदर जो पॉइंट पे जो पोटेंशियल हो ना, वो वही का वही रहता है ऑलवेज। इट इज कॉल्ड द सिंगल वैल्यूडनेस ऑफ द पोटेंशियल। कोई भी सर्किट के कोई भी पॉइंट पे अगर हम कुछ रेजिस्टेंस या कुछ चेंज नहीं करते हैं, कोई स्टेशनरी सर्किट है, तो उसके अंदर कोई भी पॉइंट के पोटेंशियल वही का वही रहता है। मतलब मैं वापस से आऊंगा ए पे, तो पोटेंशियल वापस से मुझे वी मिलेगा। अब ये वी को कैंसिल कर दो, तो क्या होगा? -I1R1 प्लस E1 प्लस I2R2 प्लस -E2 प्लस -I3R3 प्लस I4R4 प्लस I5R5 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ कि ये जो सारे पोटेंशियल है उसका एल्जेब्रिक सम 0 हुआ। तो सारे पोटेंशियल, algebraic sum of the all the potential inside the closed circuit is always 0. So that is what is the Kirchhoff second law. और उसको अगर ऐसा नहीं करना है, उसको अगर इसे ऐसे नहीं सोचना है, तो दूसरे हिसाब से भी सोच सकते हैं। इसको दूसरे हिसाब से भी सोच सकते हैं। अगर इसको ऐसे सोचना नहीं है तो इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि -I1R1 प्लस I2R2 प्लस -I3R3 प्लस I4R4
प्लस आई फाई आर फाई इज इक्वल्स टू अब ये जो ईएमएफ वाले जो टर्म्स है ना उसको मैं राइट साइड ले जा ईएमएफ वाले टर्म्स को मैं राइट साइड ले जा रहा हूं तो इज इक्वल्स टू माइनस E1 प्लस E2 मतलब क्या हुआ कि एल्जेब्रिक सम ऑफ द IR इज इक्वल्स टू एल्जेब्रिक सम ऑफ द EMF। तो किर्चॉफ सेकंड लॉ का स्टेटमेंट हम ऐसे भी बना सकते हैं कि कोई भी क्लोज्ड सर्किट के अंदर IR का मतलब करंट एंड रेजिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन का एल्जेब्रिक सम क्लोज्ड लूप के अंदर करंट एंड उसके रेजिस्टेंस का एल्जेब्रिक सम का मल्टीप्लिकेशन उसके मल्टीप्लिकेशन का एल्जेब्रिक सम क्लोज्ड लूप के अंदर जितने भी EMF है उसके एल्जेब्रिक सम जितना होता है। सो एल्जेब्रिक सम ऑफ resistance and the current flowing from it. I repeat, the algebraic sum of the product of current and their correspondent resistance is equals to the algebraic sum of the EMF inside the closed circuit. So that is what is the other way we can represent the Kirchhoff second law. तो उसका स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट ऐसा है कि algebraic sum of the potentials for the closed circuit or a loop is a zero, or in other way the algebraic sum of the product of resistance and their correspondent current is equals to the algebraic sum of the EMF in the closed loop. So this is what is the Kirchhoff's second law. तो फ्रेंड्स ये Kirchhoff second law है, ये 4 मार्क्स के एग्जाम में 4 मार्क्स में आ सकता है। तो मैंने उसको प्रूव कर दिया। क्वेश्चन ऐसा था कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द Kirchhoff's second law। Kirchhoff's second law हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। तो यहाँ पे Kirchhoff's second law जो था वो हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे देखो उसके पहले स्टेटमेंट दो अलग अलग स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। फॉर एनी क्लोज्ड लूप द एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस एंड द रिस्पेक्टिव करंट्स फ्लोइंग थ्रू इट इज इक्वल्स टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द EMF implied applied along the closed loop। या फिर द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चेंज इन द पोटेंशियल अराउंड द क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज जीरो। तो आप दोनों हिसाब से कर सकते हो। तो यहाँ पे एक सर्किट दिखा हुआ है और उसमें एक एक ब्रांच में क्या हो रहा है वो सब लिख के उसके बाद पूरा इक्वेशन लिखा हुआ है। तो समेशन ऑफ IR इज इक्वल टू समेशन ऑफ EMF प्रूव किया हुआ है। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? सर मतलब ये तो V इक्वल्स टू E माइनस IR से भी हो जाएगा ना। जीरो इक्वल्स E माइनस IR मतलब IR इक्वल्स टू E। मतलब वो जो आप सोच रहे हो ना वो खाली एक सिंगल बैटरी की बात है। तो वही चीज मतलब ये सिंगल बैटरी का जो है वही चीज हम पूरे लूप में भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं हम। आप जो सोच रहे हो वो सिंगल बैटरी की बात है, बट ये लूप में भी ऐसा पॉसिबल है। अभी मैंने आपको Kirchhoff's फर्स्ट एंड सेकंड लॉ एक्सप्लेन किया, उसका एप्लीकेशन कैसे है, उसको नेटवर्क के एनालिसिस के लिए कैसे यूज होना है, वो सब अब हम नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाले हैं। तो ये Kirchhoff's फर्स्ट एंड सेकंड लॉ क्यों हमने सिखाया मैंने वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अभी आप जस्ट उसका एक्सप्लेनेशन है उसको याद रखो। वो फर्स्ट एंड सेकंड लॉ का जो एक्सप्लेनेशन है वो उसको समझने की ट्राई करो, उससे ज्यादा मत सोचो। अभी वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा कि क्यों हमने ये चीज किया हुआ है। अभी जो है खाली उसको ही सोचो, नेक्स्ट लेक्चर में उसके एप्लीकेशंस आपको समझ में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज का सेशन मैं अभी यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वापस से हम एज पर द शेड्यूल हम मिलेंगे थर्सडे को। ये नोट्स में आपको 5 बजे आपको प्रोवाइड कर दूंगा 5 o'clock। तो अभी यहाँ पे लेक्चर में फिनिश कर रहा हूँ। सर कल टेस्ट है ना? हाँ, टुमारो वी हैव अ टेस्ट। और कल के टेस्ट में ये जो सेकंड थर्ड चैप्टर है उसका आज का पार्ट नहीं आएगा, आज तक का आएगा सब कुछ। आज तक का सब कुछ आएगा, आज का नहीं आएगा। ओके, टुमारो वी हैव अ टेस्ट और उसमें आज तक का आएगा, उसका आज का नहीं आएगा। ओके, ओके आज का सेशन मैं अभी खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू।